Hi guys, welcome back on my YouTube channel Osis Knowledge, and today we are going to discuss about the third part of Renaissance of India, and this is really very interesting for competitive examination. So just keep concentrate. Renaissance of India, okay. Renaissance of India, and this is part third. Today we will begin from Swami Vivekananda. We all know mostly about him, but today we will briefly talk about Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born in West Bengal on 12 January 1863. डेट ही लिखते चलिएगा 12 जनवरी 1863 in West Bengal. Swami Vivekananda did so many type of things for the development of Hindu religion. This is the man who promote Hindu religion, who promotes mankindness, who promotes social system, who always did people welfare programs, humanity, mostly humanity. Swami Vivekananda was the man who always promotes humanity. He was mainly a monk, and he was disciple of Ramakrishna Paramhans. Ramakrishna Paramhans was also a monk, and he was a pujari of Dakshineshwari Kali Mandir. Ramakrishna Paramhans' time was from 1836 to 1886. One thing that is very important, to promote humanity, to promote social structure, to promote mankindness, Swami Vivekananda established an organization, and the name of that organization is Ramakrishna Mission in 1897. Yes. Via Ramakrishna Mission, Swami Vivekananda promotes the knowledge of his master Ramakrishna Paramhans. One thing that is very important, Ramakrishna Mission is still working. Ramakrishna Mission is still working. Ramakrishna Mission. This is still working, and this organization was established in 1897. The childhood name of Swami Vivekananda is Narendranath Datta. Narendranath Datta, and he belongs from a caste family. So 1, 2, 3, 4 things important for Swami Vivekananda. We will briefly study about him. The 4 things is right now. I think I should write down this things in this board. So just a minute. One thing that is very important, Swami Vivekananda was known as Swami Vivekananda, childhood name of Swami Vivekananda is Narendranath Datta. ये लिख लीजिए ना, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था. He was born on 12 January 1863 in West Bengal. 12 January 1863 in West Bengal. One thing I also want to say you, Swami Vivekananda was died at very young age, only when he was only 39 years old, at 4 July 1902. 4 July 1902. चलिए मैं आपको ऊपर पूरा डिटेल बता देता हूँ. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 39 वर्ष की आयु में. इस आयु में उन्होंने कितना काम किया मैं आपको बता दूं. उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व स्तर पर परिचित किया 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में. In 1893 he represent Hindu religion on the world level at Chicago meeting in Chicago Religion Conference in America in 1893. ये याद रखिएगा, that is 1893. So this is important, and one thing that is also important, in very young age Swami Vivekananda had established an organization, Ramakrishna Mission, in 1897.
and the name of that organization is Ramakrishna Mission, and this mission, Ramakrishna Mission, is still working to promote humanity, to promote mankindness, to promote a social structure, to promote social society. Swami Vivekananda did so many type of things, and directly he was the second person of Raja Ram Mohan Rai who did so many type of things for the development of nation and for the humanity and for the mankindness. चलिए अब मैं बताता हूँ स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। नरेंद्र नाथ दत्ता, लिखते चलिएगा, नरेंद्र नाथ दत्ता। जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1800, बताइए, 12 जनवरी 1863। डेथ कब हुआ था इनका? 4 जुलाई 1902 में, मात्र 39 वर्ष की आयु में। स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? वो दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के पुजारी थे, परमहंस। ठीक है। 1893 में इन्होंने हिंदू धर्म को प्रमोट किया था, रिप्रेजेंट किया था शिकागो में, अमेरिका में। एंड यस, 1897 में उन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 he established रामकृष्ण मिशन एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टिल वर्किंग फॉर मैन ह्यूमन नेचर। बहुत सारे आप मुजफ्फरपुर जिला के बेला क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ भी रामकृष्ण मिशन है जो लोगों की मुफ्त में इलाज करती है, बहुत कम पैसे पे या पैसा नहीं लेती है और लोगों की सेवा करती है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे द सर्वेंट ऑफ इंडिया। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया organization was established by Gopal Krishna Gokhale in 1905. This organization was also to promote humanity and to promote nationality in the people of India. (1905) में सर्वेंट सर्विस लीग की स्थापना की गई थी, सोशल सर्विस लीग की, सॉरी यस द सर्वेंट ऑफ इंडिया की 1905 में स्थापना की गई थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिश्ड इन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट्स, अंग्रेजी में लिख देता हूँ यार, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया was established by Gopal Krishna Gokhale in 1905 to promote humanity and to promote nationality in people of India, to make a structure of society to which society can promote humanity, to make actually क्या हुआ था कि ब्रिटिश के आने के बाद एक मानवता, लोगों में मानवता की भावना खत्म होती जा रही थी। इस सब बातों को लेके जो हम लोग के जो हीरोज़ थे भारत के, जो महापुरुष थे, वो लोग तरह तरह के संगठन बना के लोगों में भावनात्मक मानवता की, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर रहे थे। तो उसी में द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। सोशल सर्विस लीग वाज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड बाय मल्हार जोशी वाज ऑल्सो ए helper and supporter of Gopal Krishna Gokhale. One thing that is very about Malhar Joshi was the man who established अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस in 1920। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखिएगा। तो सोशल सर्विस, ये द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में बता दिया। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए, मानवता की भावना को जागृत करने के लिए। अब नंबर 3 पर हम लोग बात करेंगे सोशल सर्विस लीग की। सोशल सर्विस लीग जो थी वो मल्हार जोशी के द्वारा स्थापित की गई थी, मानवता को बढ़ाने के लिए। ये लोग दहेज प्रथा, ये बाल विवाह के खिलाफ थे, छुआछूत के खिलाफ थे। ये लोग ये सब जो अंधविश्वास भारत में फैली हुई थी, जिससे भारत पिछड़ रहा था, उन सब के ये लोग खिलाफ थे। और ये लोग उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे जो भारत के विकास में पक्ष था, जैसे विडो विवाह, चाइल्ड मैरिज के विरोध में थे, छुआछूत के विरोध में थे, और बहुत महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे।
तो ये सब वो लोग थे। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन बना बना के सबको प्रमोट कर रहे थे। मल्हार जोशी द सोशल सर्विस लीग, ये नाम याद रखिएगा मल्हार जोशी का, क्योंकि ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और ऑप्शन में था मल्हार जोशी। तो याद रखिए मल्हार जोशी ने 2 काम किए थे, एक सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी और एक अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना की थी। 2 मल्हार जोशी established 2 organizations for the development of nation. The first is Social Service League and the second is अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस। ओके, मल्हार जोशी, मैं बड़े अक्षरों में लिखता हूँ, ये नाम याद रखिएगा, ये काम का है। मल्हार जोशी ने 2 तरह के संगठनों का स्थापना की। एक था सोशल सर्विस लीग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सोशल सर्विस लीग, और एक इसकी स्थापना ये की थी, और एक जो की थी अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस, ट्रेड कांग्रेस। मल्हार जोशी, ये नाम याद रखिएगा। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1920 अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस की। मल्हार जोशी वाज ऑर्गेनाइज्ड एस्टैब्लिश्ड 2 ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट वाज सोशल सर्विस लीग एंड द सेकेंड वाज अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस इन 1920। नाउ वी विल टॉक अबाउट भारत धर्म महामंडल। अब यहाँ से एक मैं आपको बात बताता हूँ। भारत धर्म महामंडल से पहले मैं धर्म सभा के बारे में आपको बताता हूँ। धर्म सभा जो थी वो ऑर्थोडॉक्स लोगों की सभा थी। धर्म सभा में जो थी रूढ़िवादियों की सभा थी। ये लोग सती प्रथा को भी प्रमोट करते थे, मतलब ये लोग सती प्रथा बंद होने के खिलाफ थे। ये लोग महिला सशक्तिकरण के खिलाफ थे। ये लोग कहते थे कि बाल विवाह होना चाहिए, भ्रूण हत्या होनी चाहिए। रूढ़िवादी लोग थे ये पुराने ख्यालों के थे। ये महिला सशक्तिकरण के खिलाफ थे। ये लोग मुख्यतः वे लोग थे जो देश के पिछड़ापन में, हिंदू धर्म की बदनामी में और समाज के विनाश में इनका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनका योगदान था। दिस ऑल द पीपल वाज ऑर्थोडॉक्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन वाज टू alleviate the development of country, alleviate the development of Hindu religion and to alleviate the development of mankind, human beings. These are all the person. लेकिन इनके बारे में पढ़ना आवश्यक है क्योंकि ये एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है। धर्म सभा मैं इनको देश के विकास में इनके योगदान को मतलब गिनती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने, आप सोचिए कि सती प्रथा के पक्ष में थे ये लोग। जो आदमी औरत को जिंदा जलाने के पक्ष में होगा वो क्या विकास की बात करेगा। लेकिन पढ़ना इस मूवमेंट के बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पढ़िएगा, पढ़ना है। मैं बताता हूँ आपको धर्म सभा के बारे में। राधाकांत दुबे एंड दिस वाज ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1830। एक ही नाम याद रखिए, राधाकांत दुबे। धर्म सभा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय राधाकांत दुबे इन 1830। राधाकांत दुबे इन 1830। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत दुबे ने किया था। राधाकांत दुबे जो थे वो प्राचीन रूढ़िवादी सिद्धांतों के थे। ये लोग सती प्रथा के समर्थन में थे, याद रखिएगा इस बात को, धर्म सभा के लोग। और ये लोग मतलब ये लोग देश के पिछड़ापन में, ऐसे ही याद रखिएगा कि ये लोग देश के विनाश में योगदान था, बस याद आ जाएगा आपको। अब बताइए, जो सती प्रथा के पक्ष में होगा वो व्यक्ति क्या डेवलपमेंट की बात करेगा। जो ऑर्थोडॉक्स विचार के लोग होंगे उनकी बातें कितने विकास के लायक होंगी। तो ये हो गया धर्म सभा के बाद में आपको के बाद भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। भारत धर्म महामंडल जो था वो छोटे छोटे धर्म संघ जो थे उनके टुकड़ों को मिलाकर 1902 में एक बड़ा भारत धर्म महामंडल का निर्माण किया गया था। भारत धर्म महामंडल इन 1902 1902 में। तो ये भारत धर्म महामंडल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में लोग जो बटे हुए थे उनको यूनाइट करके बनाया गया था 1902 में।
भारत धर्म महामंडल, महामंडल 1902 में, याद रखिएगा डेट, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी सिद्धांतों के लोग थे। अच्छा एक मैं बात बता देता हूँ, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए, मेरे बहुत सारे छात्र जो हैं तो रूढ़िवादी प्राचीन विचार के लोग थे, तो महिलाओं सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं थे, महिला के शिक्षित करने के पक्ष में नहीं थे, सती प्रथा के पक्ष में थे ये लोग, बाल विवाह के खिलाफ नहीं थे ये लोग मेनली जो थे वो डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत नगण्य के बराबर है। लेकिन पढ़ना है हम लोग को तो थोड़ा जो मोटा मोटी जानना है वो जान लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हुआ सेवा सदन। सेवा सदन जो था वो ब्रह्म जी एम मालहारी के द्वारा स्थापित किया गया था। सेवा सदन मालाहारी, ये एक पारसी थे, ठीक है, ही वाज अ पारसी। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो था इसका एक कंट्रीब्यूशन था देश के डेवलपमेंट में। इससे पहले मैंने जितने भी पढ़ाया था उसमें क्या नाम था इसका, एम जी मालवाड़ी, ब्रह्म जी एम मालवाड़ी, ब्रह्म जी एम मालाहारी नाम था, मालाबाड़ी नहीं था। सेवा सदन की स्थापना की थी। सेवा सदन, पारसी थे, बाल विवाह के खिलाफ थे, अगेंस्ट ऑफ बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह के सपोर्टर थे, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन करते थे। और महिला सशक्तिकरण की बात करते थे। तो इनका नाम था, और इन्होंने स्थापना की थी सेवा सदन। सेवा सदन की स्थापना की थी ब्रह्म जी एम मालाहारी। सेवा सदन was established by Brahmji M. Malawari. He was a Parsi and he always promotes widow remarriage. He was against of child marriage and he supports women education system, and he was always promotes mankindness, humanity and social structure. This is the man, Parsi. And now we will talk about Indian Social Conference. Indian Social Conference, yes. Indian Social Conference was established by Mahadev Govind Ranade in Maharashtra, mainly in Maharashtra. Okay, Indian Social Conference was established by Mahadev Govind Ranade with the help of Raghunath Rao. Okay, ये दो नाम याद रखिएगा। In 1887 in मद्रास। ओके, मैं महाराष्ट्र बोल दिया था शायद, मद्रास। इंडियन सोशल सर्विस लीग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महादेव गोविंद रनाडे एंड रघुनाथ राव, एंड दिस द फर्स्ट मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज हैपेंड इन मद्रास इन 1887। ठीक है, इंडियन सोशल सर्विस लीग, इंडियन सोशल सर्विस लीग, पहले नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ बड़े अक्षरों में। इंडियन सोशल सर्विस लीग, मैं नाम बोलता हूँ, आप लोग खुद भी लिखिएगा। इंडियन सोशल सर्विस लीग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महादेव गोविंद रनाडे एंड with the help of Raghunath Rao, and every year the meeting of the conference of the Indian Social Service Conference had happened, and the first conference had happened in 1887 in Madras. This is very important. अब चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आज हम लोगों ने जितने डिस्कशन किए उसमें हम लोगों ने बात किया रामकृष्ण मिशन के बारे में, देव समाज के बारे में, और द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में, धर्म सभा के बारे में, भारत धर्म महामंडल के बारे में, सेवा सदन के बारे में, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज हम लोगों ने 7 मूवमेंट के बारे में पढ़ाई की है, और मैं इस 7 मूवमेंट को एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 7, आज हम लोगों ने कितने मूवमेंट के बारे में ये किया, पढ़ा है? 7 मूवमेंट्स।
ये मूवमेंट जो है ये रेनेसेंस को लेके है, पुनर्जागरण को, लोगों में मानवता भावना, धर्म के प्रति जो बुराइयां थी उनको ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। पहला था रामकृष्ण मिशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु जी के बारे में, परमहंस रामानंद परमहंस। दूसरा हम लोग जो पढ़ा था देव समाज के बारे में, देव समाज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देव समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री इन अग्निहोत्री। देव समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री इन 1887 इन लाहौर, इन 1887 इन लाहौर। शायद छूट गया होगा हम लोग। देव समाज, This organization was also to promote human nature, man kindness, social structure, against of child marriage, against of untouchability, and supports women empowerment. So this is all about Dev Samaj. This is all about Dev Samaj. तो रामकृष्ण देव समाज तीसरा हो गया। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया गया था 1905 में। गोखले यहाँ मैं लिख देता हूँ, गोखले याद रखिएगा। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, देव समाज स्थापित किया गया था अग्निहोत्री जी के द्वारा। अग्निहोत्री जी का पूरा नाम क्या है? शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री, अग्निहोत्री। चौथा जो है सेवा सदन, ब्रह्म जी एम मालवाड़ी, सेवा सदन, सेवा सदन ब्रह्म जी एम मालाहारी, मालाबारी निकल जाता है मुंह से बार बार, मालाहारी। एंड पांचवा जो हो गया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, महादेव गोविंद रनाडे एंड रघुनाथ राव। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, एम जी रनाडे एंड रघुनाथ राव। छठा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेवा सदन, भारत धर्म महामंडल 1902 में, भारत धर्म महामंडल। ये छोटे छोटे धर्म संगठन को लेकर बनाया गया था 1902 में, और ये रूढ़िवादी विचार के लोग थे। इनके बारे में बस इतना जान के पढ़िएगा आप कि ये लोग देश के पिछड़ापन में इनका योगदान था, क्योंकि ये लोग सती प्रथा के भी समर्थन में थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कोई विकास को माना नहीं जाए वही ठीक रहेगा। धर्म सभा रमाकांत दुबे के द्वारा हुआ था, ये लोग सती प्रथा के सपोर्ट में थे। लेकिन पढ़ना एग्जाम में पूछेगा राधाकांत दुबे। इस मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद हम लोग इसके 1000 प्रश्नों का 1000 सवालों का जवाब का हम लोग का क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, और इसका हम लोग रिवीजन करेंगे 1000 प्रश्नों का आधुनिक इतिहास से, जिसमें मेनली 1000 प्रश्न जो रहेंगे वो भारत के मूवमेंट से रहेंगे, ब्रिटिश काल से 1000 सवाल रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से चलिएगा। और वो 1000 सवाल का जो ये रहेगा वो भी देखिएगा, वो महत्वपूर्ण रहेगा। और क्या, और मेरा चैनल पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा बटन को भी दबाइए। एंड जय हिंद एंड बी साउंड।